So currently I am standing at the same crash site where ill-fated Air India's AI-171 Ahmedabad to London destined flight crashed on Thursday afternoon. So you can just look at the condition of the building where the flight crashed on Thursday afternoon, leaving 241 people on board dead, while several of the intern doctors at this Atulyam 4 hostel over here, they also died in this tragic incident. And the building clearly shows the tale of the tragic incident that happened on Thursday afternoon. As you can see, the entire building, which was coated in a white paint, has now turned black just because of the flames that came out of the AI-171 flight, which crashed over here and engulfed into fire. So clearly, the marks are still visible, and as you can see, the police has completely cordoned off the area. They have put barricades over here. No entries are being allowed inside or to go near the crash site. And I will also ask my VJ to show you some of the footage of the building over there, that how dark black it has turned due to the fire that erupted after the crash of the AI-171 on Thursday afternoon. So you can clearly see several of the police personnel guarding over here, and the fire services, fire tenders also standing over here. And even we can show you the footage of this dog, the sniffer dogs that have been brought over here. So clearly the rescue workers are still working out, and they are trying to gauge the kind of damage that this flight accident has done yesterday in the afternoon. Several people died in this accident, and this didn't give the rescue personnel, especially over here, any chance to save the people who were in those flights. And even more than 50 students from this hostel, they have died over here. And it is being said from the administration sources that more than 300 people have died in this tragic incident that took place on Thursday afternoon. With Vijay Ankush Sharma, Anand Singh, Newsx, Ahmedabad. The rescue personals, the SDRF personals, clearly they are going once again inside the crash building, the crash site at which the tragic incident happened on Thursday afternoon. So they are once again entering the crash site, and as you can see on the visuals, that how once again they are going to carry out one last attempt to try to find out the human remains, the remains of the dead bodies who died in this tragic air disaster on Thursday afternoon. So clearly they also mentioned that how it was very devastating situation for them, and it was very devastating experience for them, as just behind the cockpit, one of the officials of the SDRF said that just behind the cockpit they recovered more than 40 dead bodies. So clearly the 242 people on board AI 171, out of which 241 people have died. But beside that, several of the intern doctors and several of the people who were residing in this hostel had also died in this tragic accident that took place on Thursday afternoon. With Vijay Ankush Sharma, Anand Singh, Ahmedabad. Was witnessed on Thursday afternoon when Air India's AI-171, which was all set to take off from Ahmedabad and was to reach London, it crashed just within a minute after taking off from the Sardar Vallabhbhai Airport, killing 241 out of the 240 people on board the flight. So I am joined by some of the SDRF personals who were the first responders to start the rescue operation over here. So we'll speak to them and try to understand that what was the scene and how tough it was for them to carry out such a rescue mission when the aircraft and the building on which it crashed, it was all engulfed in fire. Sir, क्या सिचुएशन थी कल जब आप लोग यहाँ आए फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स के तौर पर, तो क्या देखने को मिला आपको? पहले आए तो सब जला हुआ था, जल रहा था, सब धुआं ही धुआं, कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। सब जगह पे आग जल रही थी।
जब फायर वाले आए थे, फायर वाले आग बुझा रहे थे, फिर बाद में हमको हुक्म मिला कि सब सब टीम काम पे लग जाए। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ सब टीम, जो फायर वाले थे सब, जो मलबा हट नहीं रहा था, जो आदमी से नहीं हो रहा था, वो मशीन जेसीबी जैसे मशीन थे, बड़े मशीन लगाए हुए थे, वो मलबा हट रहा था जहाँ से डेड बॉडी निकल रही थी। हम सब लेके उसको बाहर एम्बुलेंस में, कोई जिंदा मिल जाए ऐसे भी आस रख के हम चले थे कि कोई इसमें बच जाए। बचाने की कामगिरी हमारी ध्येय यही था कि भाई कोई बचा हुआ मिल जाए ऐसा, लेकिन सब डेड बॉडी जली हुई थी। कितना देर रेस्क्यू मिशन आपका चला था यहाँ? हम 2:45 से 2:45 से चल रहे थे रात को 12 बजे तक। 12 बजे तक हम वहाँ ही थे, सब डेड बॉडी। लास्ट में जब डेड बॉडी एक निकली वहाँ से 12 बजे पूरा, 12 साढ़े 12 बजे पूरा हुआ। इतनी भयावह आग लगी जब प्लेन क्रैश हुआ यहाँ पर, उसके फ्यूल टैंक्स पूरे फुल थे, फ्यूल भरा हुआ था, आग काफ़ी तेज़ी से फैली और काफ़ी डॉक्टर्स भी, इंटर्न डॉक्टर्स जो थे, फैमिलीज रहती हैं इस हॉस्टल में, जो सिविल हॉस्पिटल का ही हॉस्टल है यहाँ पर, और उसके बाद नीचे मेस में जो सारे इंटर्न डॉक्टर्स लंच कर रहे थे, तो किस तरह का सीन था जब आप लोग यहाँ पर आए, और क्या लोग आसपास से भी भाग रहे थे, क्योंकि ये पूरा रिहायशी इलाका है? हाँ, रिहायशी, मतलब ये जो प्लेन क्रैश हुआ, जो मतलब कि जो जगह थी, जगह मिली, वो जो सेफ जगह पे ही गिरा ऐसा लग रहा है। बाकी वहाँ से ये पूरी सिविल हॉस्पिटल, एशिया की बड़ी हॉस्पिटल बोला जाता है, कि यहाँ थोड़ा भी इधर उधर हो जाता, ये जनसंख्या ज़्यादा हो सकती थी। जो मृतक की संख्या इसमें मैक्सिमम बोल रहे थे, डेड बॉडी वहाँ से निकालने वाले अलग टीम थी, उसने निकाला, उसमें कम से मैक्सिमम 30-40 आदमी वहाँ मृतक हालत में मिले हुए हैं, जल गए ये सब। वो बिल्डिंग के दूसरी साइड से भी सब, मतलब जो व्हीकल पड़े हुए थे वो सब भी जल गए हुए। तो उसके आने के बाद जब हम थोड़ा रेस्ट मिला तो गए तो देखा तो वहाँ भी सब जला हुआ था। तो इसमें पूरा का पूरा मलबा जब तक नहीं निकाला तब तक मालूम ही नहीं पड़ा कि क्या है क्या। किसी का सिर नहीं था, पैर नहीं था, ऐसे जले हुए थे, किसी का मालूम ही नहीं पड़ रहा था कि इसमें क्या है। डेड बॉडी भी निकल नहीं रही थी कि जहाँ वो कपड़े से हाथ से निकाल के खींच के निकालना पड़ा, क्योंकि हमने पहली बार ऐसा कभी इसका ऐसा हुआ, ऐसा देखा नहीं है। होता है छोटा बड़ा, मतलब ये बहुत बड़ा हमारे लिए, तो ये अपने सर्विस में लगे हुए इसमें पहला बड़ा इतना अच्छा देखा हुआ कि इतने आदमी चल बसे इसमें। और कहीं ऐसी जगह भी होगी जहाँ पर से आपको करीब 10-15 बॉडी एक साथ निकाले हो, क्योंकि अभी आपने बताया कि एक साइड में 40 बॉडीज़ आपको मिली, जहाँ से आप लोग लास्ट में जो बोइंग का वो मशीन बोल रहे थे प्लेन के बारे में, इतना तो मैं, लेकिन लास्ट में जो बोइंग का जो रहता है ना, जो पायलट की पीछे के साइड वाला, वहाँ से जो मलबा एक साथ में था कि मैक्सिमम 10-15-20 ट्रक भर जाओ इतना, उसको जैसे निकलते 2-4-5 बॉडी एक साथ में निकल रहे थे, ऐसे 15-20 बॉडी एक साथ में मिली वहाँ से। So, I'm joined by one of the eyewitnesses of the deadly air crash that took place in Gujarat's Ahmedabad that left around 241 people on board dead and more than 50 doctors, intern doctors who were especially available at this building, they also died in this tragic crash. So I'm joined by one of the witness over here. So we will talk to him and try to understand that what was the situation on Thursday afternoon when this deadly air crash happened over here. Sir, आपका नाम? मेरा नाम प्रिंस पटनी है। क्या हुआ था कल, क्या देखा आपने? आप मैंने जैसे एंटर किया है गेट के अंदर, वैसे मेरे को देखने में आया कि आँख सीधी मुंह पे आई है, आँख सीधी मुंह पे आई और काला धुआं अचानक से छा गया। मेरे को ऐसा लगा कि भयानक बारिश होने वाली, पर आगे जाके देखा कि प्लेन क्रैश हुआ है। मैं और मेरा दोस्त जा रहे थे मेरे छोटे भाई का एडमिशन लेने के लिए, और ये हमारा रेगुलर रास्ता है, शॉर्टकट रास्ता पड़ता है हमारे घर से, इसके लिए रेगुलर रास्ता है। मैं यहाँ से करीब 100 मीटर की दूरी पे रहता हूँ। ये हादसा हुआ इसके 100 मीटर की दूरी। क्या जब यहाँ पे प्लेन क्रैश हुआ तो अंदर कितने लोग मौजूद थे और किस तरह का यहाँ पर सिचुएशन? सारे स्टूडेंट्स जो थे वो लंच कर रहे थे अंदर, बॉयज़ करीब 70 स्टूडेंट्स जितने थे और लंच कर रहे थे। तो उन लोग की हमने सोचा कि मैंने सबसे पहले मेरे ग्रुप को कॉल किया, मैं अकेला तो कुछ काम हो सकता नहीं था मेरे से, तो मैंने सबसे पहले मेरे ग्रुप को कॉल किया है। और जैसे क्रिकेट खेलते खेलते वो लोग को साउंड सुनाई दे, वो लोग भागते हैं और वो लोग ने रास्ते में मेरा कॉल उठाया, और हमको, मैं जहाँ रास्ते में पहुँचा था मेरे को लगा कि म्यूनसिपाल्टी स्कूल में वो छोटे छोटे बच्चों को इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट हुआ या कुछ हुआ, ऐसा मेरे को लगा। पर अंदर एंटर हुआ तो जैसे आँख मुंह पे आई और काला धुआं मुंह पे आया,
तो हमने सबसे पहले सारे ग्रुप ने मिलके सिलेंडर्स उतारने में सोचा, गैस सिलेंडर्स, उससे ज़्यादातर ब्लास्ट हो सकते थे। गैस सिलेंडर्स उतारे और धुआं धुआं अंदर पूरा हो गया, तो फिर सबने मिरर्स तोड़ने में सोचा। और उसके बाद सारे सूटकेस देखे, और सूटकेस के एक दीवार थी, दीवार सूटकेस के नीचे दीवार के, और दीवार के नीचे से एक हाथ बाहर आया। तो मैंने देखा अंदर नीचे लाशें दबी हुई है। मैंने ग्रुप को बोला सूटकेस हटाइए और दीवार आगे पीछे करके लाशें निकाले। बॉडीज निकाली आपने? हमने करीब 15-20 बॉडीज अंदर से निकाली थी हम जब तक मौजूद थे। फिर आर्मीज और पुलिस आए तो फिर हम लोग निकल चुके हैं वहाँ से। हमको नहीं रहने दिया कि हम तुम्हारे साथ भी कुछ हादसा हो सकता है, तुम लोग जाओ। तो फर्स्ट रिस्पॉन्डर में कौन कौन यहाँ पहुंचे थे सबसे पहले, और किस तरह की स्थिति बनी थी, किस तरह का सबसे पहले यहाँ पे आर्मी कैंप है, आर्मी कैंप, और मैं जहाँ अंदर एंटर हुआ, आर्मी कैंप वाले भी, उनकी भी जान की, आर्मी वाले को मेरे को सैल्यूट है दिल से, उनकी भी जान की परवाह किए बिना वो लोग आँख में अंदर घुस चुके हैं, आँख में अंदर घुस चुके हैं। और सब लोग दीवार कूद कूद के आ रहे हैं, और सारी औरतें थी वो वीडियो उतारने में सोची थी, और आसपास के जो सारे आदमी लोग थे वो सब आए और अंदर घुस चुके अपनी जान की परवाह किए बिना सबको रेस्क्यू करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। सो दिस वाज वन ऑफ द लोकल रेसिडेंट्स ओवर हियर, प्रिंस, हु एक्सप्लेन दैट व्हाट काइंड ऑफ सिचुएशन वाज देयर on Thursday afternoon, and he himself admitted that his group, along with some other youths, they were able to track around 10 to 15 dead bodies from this hostel. विमान हादसे में अकोला के